Hello everyone, how are you all? Today we are going to solve revision worksheet of chapter number 2 and 12. Okay, this is the class 9th worksheet. Okay, now let's start. These are the MCQ questions. Okay, now first MCQ question, choose the odd one. Which one is odd? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या फिर सिल्वर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? विच वन इज ऑड वन? द राइट आंसर इज सिल्वर. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी, सिल्वर. दिस इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट, which of the following liquid will leave behind a residue on heating? कि which of the following liquid will leave behind a residue on heating? ऑप्शन ए मरकरी, अल्कोहल, मिल्क या फिर ऑप्शन डी ब्राइन. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी ब्राइन. दिस इज द राइट आंसर. एंड ब्राइन, दिस इज अ salty water, मतलब salt dissolved in a water. This is known as the brine. Okay, now the next is on heating saturated solution becomes. कि on heating जब हम हीट करते हैं तो saturated solution becomes option A unsaturated solution, option B super saturated solution, option C remains as saturated solution या फिर option D none of these. So what is the right answer? The right answer is option A unsaturated solution. Okay, now the next is which one is not a source of carbohydrate? इसमें से कौन सा सोर्स नहीं है कार्बोहाइड्रेट का? राइस, माइलेट्स, सोरगम या फिर ग्राम. तो which one is not a source of carbohydrate? So what is the right answer? Option D gram. Okay, now next, which of the following is micronutrient? इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम या फिर ऑप्शन डी बोरोन. तो which one of the following is a micronutrient? So what is the right answer? Option D boron. Okay, now the next is which of the following is not a drought animal? So basically drought animal, which animal carries luggage? जो एनिमल लगेज को कैरी कर सकते हैं, they are known as the drought animal. अब इसमें हमें बताना है which of the following is not a drought animal. So what is the right answer? Option A horse, option B sheep, option C mule या फिर ऑप्शन डी कैमल. So what is the right answer? Option B sheep, because mule, camel, horse ये सब क्या करते हैं? कैरी करते हैं लगेज को, बट शीप कैरी नहीं करती. Which of the following is a pure substance? इसमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है? Okay, pure substance which consists of a single type of elements. Okay, now milk, air, oxygen and salt solution. So what is the right answer? Option C oxygen. This is the right answer. Now next is Tyndall effect is shown by. Tyndall effect shown होता है किसके थ्रू? ऑप्शन ए ट्रू सॉल्यूशन, ऑप्शन बी कोलाइडल सॉल्यूशन, ऑप्शन सी सस्पेंशन या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. तो Tyndall effect shows by कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. दोनों सॉल्यूशन Tyndall effect शो करते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी. दिस इज द राइट आंसर. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. दिस इज द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी, क्योंकि कोलाइडल भी सॉल्यूशन Tyndall effect शो करेगा और सस्पेंशन भी Tyndall effect शो करेगा. नाउ द नेक्स्ट इज which of these is a heterogeneous mixture? इसमें से कौन सा heterogeneous mixture है? ऑप्शन ए विनेगर, एयर, शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉइल. तो व्हाट इज द राइट आंसर? heterogeneous mixture. ऑप्शन डी सॉइल. तो कौन सा होगा?
Option D, soil. Soil, this is a heterogeneous mixture. A solution that cannot dissolve more solute at a given temperature. कि जो solution है, a solution that cannot dissolve more solute at a given temperature, उसे हम क्या कहेंगे, जिसमें हम और solute dissolve नहीं कर सकते. So this is a saturated solution, unsaturated solution, supersaturated या फिर dilute solution. So what is the right answer? Option A, saturated solution. So this is a saturated solution. Now next, which of the following is a macronutrients of plants? कि इसमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है ऑफ प्लांट का? जिंक, मैग्नीज, नाइट्रोजन या फिर कॉपर. तो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी, नाइट्रोजन. ओके, दिस इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. नाउ नेक्स्ट, which of the following is used to control insect pest? कि इसमें से किसको हम पेस्ट को कंट्रोल, कौन सा पेस्ट हम यूज में लेते हैं इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए? हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या रोडेंटिसाइड्स. तो नेचुरल है, कौन सा हम लेंगे? इंसेक्टिसाइड्स. तो कौन सा हम यूज में ले रहे हैं? इंसेक्टिसाइड्स. The practice of growing 2 or more crops simultaneously on the same field is called. क्या कर रहे हैं हम? प्रैक्टिस कर रहे हैं growing 2 or more crops simultaneously on the same field. This is called crop rotation, mixed cropping, monoculture या multiple harvesting. So this is known as the mixed cropping. Okay. Now the next is hybridization is used to. hybridization हम क्यों यूज में लेते हैं? what is the benefit of hybridization? increase the life of crop, क्रॉप की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए. improve crop variety, क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए. increase crop storage, क्रॉप की स्टोरेज को इंक्रीज करने के लिए. या फिर reduce irrigation. तो बेसिकली hybridization is used for the improved crop variety. What is the right answer? Option B. This is the right answer. Now next, which of the following is an example of row's food? तो कौन सा होगा? Pulses, fats, green leafy vegetables या oil. तो what is the right answer? Option C. Green leafy vegetables. This is the right answer. Now next, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज fill in the blanks. ओके, ये हमारा कौन से क्वेश्चन है? fill in the blanks है, जो हमारे हाफ मार्क्स के आएंगे. नाउ द फर्स्ट इज fill in the blank cannot be chemically broken down into simpler substances. इसमें से किससे कौन सा एक है जिसे हम cannot be chemically broken, हम उसे broken नहीं कर सकते chemically into simpler substance? So what is the right answer? The element. What is the right answer? Element. This is the right answer which cannot be broken down, जिसे हम नहीं कर सकते. So what is the right answer? Element. Okay, element cannot be chemically broken down into simpler substance. Now next, on cooling, saturated solution, solubility of solute in this solution. कि on cooling saturated solution को जब हम cool करते हैं तो on cooling saturated solution, the solubility of solute in this solution क्या होगी? decrease या increase? So this is the decrease. What is the right answer? This is the decrease. Now next, a true solution is in nature. True solution कैसा होता है नेचर में? होमोजीनस कि हेट्रोजीनस? तो दिस इज द होमोजीनस.
Okay. This is the homogeneous in nature. Now, the next is the parasite live on the skin and mainly cause skin disease. Parasite जो स्किन पर रहते हैं और मेनली स्किन डिजीज कॉज करते हैं. These are ectoparasite या external. ectoparasite या external. हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. एक्टोपैरासाइट्स लिख सकते हैं या फिर एक्सटर्नल लिख सकते हैं. एक्सटर्नल पैरासाइट्स. ओके. नाउ आर कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक. किसको हम कल्टीवेट करते हैं? किसके लिए? पर्ल्स के लिए. तो पर्ल्स के लिए कौन होगा? ऑयस्टर. व्हाट इज द राइट आंसर? ऑयस्टर. Okay, oyster are cultivated for the pearls they make. Now, next, the bees have high honey collection. कौन सी bees होती है जिनमें ये नेचर होता है हाई हनी कलेक्शन का? तो these bees are Italian. कौन सी bees होती है ये? These are the Italian bees. Okay, have high honey collection. Now, the next is a substance made up of only one kind of particles is called. कि substance made up of one kind of particle is called pure substance. So, what is the right answer? Pure substance. क्या होगा? This is the pure substance. Now, the next is the scattering of light by colloidal particle is called the. कि क्या कर रहे हैं हम? लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं. तो दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट. तो इसे हम क्या कहेंगे? टिंडल इफेक्ट. This is known as the Tyndall effect. Now, a mixture of two immiscible liquid can be separated using a funnel. किससे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं? कौन से? सेपरेटिंग फनल से. Using a separating funnel, we can separate the two immiscible liquids. हम किससे सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेटिंग फनल के थ्रू. The smallest units of compound is a. जो स्मॉल यूनिट है किसकी? कंपाउंड की. दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूल. द स्मॉलेस्ट यूनिट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड की, उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल. ओके. एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोलाइड इज. कोलाइडल सॉल्यूशन का कोई भी एक एनी एग्जाम्पल, जैसे हम मिल्क लिख सकते हैं. ओके. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. ओके. नाउ the next is the scientific process of developing a new crop variety is called. कि हम न्यू क्रॉप वेराइटी जनरेट कर रहे हैं by the scientific method. This is known as the hybridization. This is known as the hybridization. Now, are chemical substance that kill weeds. हम कौन से केमिकल सब्सटेंस यूज में लेते हैं वीड्स को किल करने के लिए? इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडिसाइड्स. तो हम बेसिकली वीड्स को किल करने के लिए वीडिसाइड्स यूज में लेते हैं. हर्बिसाइड्स भी हम ले सकते हैं. एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूड्स किसके मैनेजमेंट के लिए हम इंक्लूड करते हैं? एनिमल्स एंड बर्ड्स. एनिमल एंड बर्ड्स के मैनेजमेंट के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री यूज में
लेते हैं ना। पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विद द rearing of fowls. Okay, now manure improves soil structure and fertility. ओके ये हमारे क्या थे फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने कंप्लीट किए। नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है 1 मार्क्स के। ओके नाउ गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एनी 2 एग्जांपल एक्वस सॉल्यूशन जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ओके तो यहाँ पर हमारे 2 एग्जांपल्स हम कैसे भी दे सकते हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर दे सकते हैं, अमोनिया इन वाटर, अमोनिया इन वाटर, ठीक है, शुगर इन वाटर, कोई भी हम दे सकते हैं, हमें एग्जांपल देना है एक्वस सॉल्यूशन का। नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, हमें किसका एग्जांपल देना है, सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल होगा, द एग्जांपल इज अलॉय और अलॉय में हम किसका देते हैं, ब्रास, और किससे मिलकर बना है, कॉपर एंड जिंक, कॉपर प्लस जिंक। ओके तो कौन सा एग्जांपल होगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का, अलॉय होगा, जिसके अंदर हम कौन सा एग्जांपल देंगे, ब्रास का, जो किससे मिलकर बना है, कॉपर एंड जिंक से। नेम द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन टिंचर ऑफ आयोडीन, तो इसके अंदर हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट बताना है। तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, द सॉल्वेंट इज एल्कोहल, ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूट होगा दिस इज आयोडीन। ओके तो सॉल्वेंट हमारा कौन सा होगा, एल्कोहल, और सॉल्यूट हमारा क्या होगा, आयोडीन। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट, तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या होगी, तो कंपोस्ट विच इज प्रिपेयर बाय विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग कर रहे हैं कंपोस्ट, किसकी हेल्प से, हेल्प ऑफ अर्थवर्म। क्या होगी, कंपोस्ट विच इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, दिस इज नोन एज द वर्मी कंपोस्ट। ओके नाउ नेम एनी 2 देसी एंड एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री, तो इसके अंदर आप देसी के अंदर लिख सकते हैं असाइल, ओके या फिर एक कदार ये लिख सकते हैं, वो ये दोनों हमारी किसके अंदर आ जाएगी, देसी के अंदर, ठीक है, और आप एक्सोटिक के अंदर लिख सकते हैं, एक्सोटिक के अंदर आप सकते हैं लेगॉन, ठीक है, और लिख सकते हैं ब्लैक मैनोर का। ओके ये सारी एक्सोटिक के अंदर आ जाएगी। गिव वन एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस सॉल्यूशन, तो इसके अंदर सॉलिड गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम, क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम। Okay, this is the example of solid gas solution. Now, the next is what is organic farming? तो organic farming के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर बेसिकली जो हम फार्मिंग कर रहे हैं विदाउट एनी सिंथेटिक केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो यहाँ पे हम करेंगे विदाउट एनी केमिकल या विदाउट एनी सिंथेटिक chemicals and fertilizers, without synthetic,
chemicals and fertilizers. ओके, तो दिस इज नोन एज द ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल्स ना हो और कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स यूज में ना हो. ठीक है, नेम वन माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स. कौन सा होगा? जिंक. ओके, नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप. कोई सा भी दे सकते हैं, जैसे बीट. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर बायोपेस्टिसाइड्स. तो बायोपेस्टिसाइड्स के अंदर जो बायोपेस्टिसाइड्स बेसिकली हम प्रिपेयर करते हैं बाय द नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म से. जैसे आपके आ जाएगा बैक्टीरिया, फंजाई, दे आर द नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो जो हम बायोपेस्टिसाइड्स प्रिपेयर करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम प्रिपेयर करते हैं. ओके, इसके अंदर आ जाएगा हमारा बैक्टीरिया एंड फंजाई. एग्जांपल्स, नेम वन मेथड यूज फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट. क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज में लेते हैं? दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन. This is the method of hybridization which is used for the crop improvement. Now, next, these are the short question answers. शॉर्ट के अंदर हमें फर्स्ट है, हाउ आर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन कैसे डिफरेंट है? तो सॉल्ट के अंदर आ जाएगा बेसिकली दे आर लुक लाइक अ होमोजीनस बट दे आर हेट्रोजीनस सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर है दे आर होमोजीनस सॉल्यूशन. सस्पेंशन, दिस इज द हेट्रोजीनस सॉल्यूशन. सॉल्ट के अंदर आप लिख सकते हो दिस इज द स्टेबल सॉल्यूशन, स्टेबल. सस्पेंशन अनस्टेबल हो गया. सोल के अंदर आप लिख सकते हैं कि इट स्कैटर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. सॉल्यूशन नहीं करेगा, दे कैन नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. सस्पेंशन, दे कैन स्कैटर द बीम ऑफ लाइट. ओके, नाउ व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड व्हाई. हम कौन सा मेथड यूज में ले सकते हैं इंप्रूव करने के लिए कैटल ब्रीड्स को, एंड व्हाई, क्यों कर सकते हैं? तो हम इसमें इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज में लेंगे क्रॉस ब्रीडिंग. क्रॉस ब्रीडिंग मेथड हम यूज में लेंगे. क्यों? इससे हम क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करेंगे, टू गुड क्वालिटीज की जो क्रॉप है उनको क्रॉस करवाएंगे और न्यू वेराइटी की हम क्रॉप जनरेट करेंगे. तो उससे हमें क्या मिलेगा, जो डिजायर्स कैरेक्टर्स है वो हमें उस न्यू क्रॉप के अंदर मिल जाएंगे. दैट इज द रीजन. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग. तो कौन कौन सी हो सकती है? क्लीननेस हो सकती है, प्रॉपर फीड हो सकती है, रेगुलर हेल्थ चेक हो सकती है. ठीक है, तो ये हम यूज में ले सकते हैं डेयरी के अंदर और पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर. ओके, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो बेसिकली जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड बाय वन एलिमेंट. मतलब हम यूँ कह सकते हैं कंपाउंड जो प्रिपेयर हो रहे हैं बाय सिंगल एलिमेंट या बाय एलिमेंट विद द केमिकली सब्सटेंस के थ्रू हम कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं. बट मिक्सचर, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स हो सकते हैं बट सिंपली वे में, उसमें कोई केमिकल वे यूज में नहीं आएगा. बट कंपाउंड के अंदर हम क्या करेंगे, टू और मोर एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर रहे हैं बट केमिकली. मिक्सचर के अंदर हम केमिकली कंबाइन नहीं करते. कंपाउंड बेसिकली ये केवल जो होते हैं ये होमोजीनस होते हैं. मिक्सचर होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों तरह के हो सकते हैं. आपको कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं. व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? मेंशन वन एडवांटेज. तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? बेसिकली टू डिफरेंट क्रॉप्स को हम इन अ फील्ड की सेम फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उनको क्रॉप को हम ग्रोन करवा रहे हैं. दिस इज नोन एज द मिक्स्ड क्रॉपिंग. कि मतलब हम सेम इंटरवल में, दिस इज द फील्ड, यहाँ पे हम क्रॉप ए क्रॉप बी, क्रॉप ए क्रॉप बी, इस तरीके से मिक्स्ड क्रॉप हम क्या करें कि टू डिफरेंट क्रॉप्स को एक सेम फील्ड के अंदर हम उसको ग्रो करवा रहे हैं. दे आर नोन एज द मिक्स्ड
क्रॉपिंग। और इसका क्या एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमारे हमें ये जो क्रॉप फेलियर होता है उससे हमें प्रिवेंशन मिलता है, इसके साथ साथ डिजीज से हमें प्रिवेंशन मिलेगा। ओके, नाउ व्हाई इज क्रॉप रोटेशन इज इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर। तो बेसिकली व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि क्रॉप टू क्रॉप्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर हम ग्रो करवा रहे हैं, कि एक बार हमने कोई एक क्रॉप ग्रो करवा ली, फिर नेक्स्ट हम दूसरी क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को रोटेट करके हम ग्रो करवा रहे हैं। और इससे एग्रीकल्चर के अंदर क्या यूटिलाइज हो, क्या इसका इंपॉर्टेंस है कि इससे क्या होगा कि हमारी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी। और सेकंड थिंग जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है जो क्रॉप ए के थ्रू यूज में ले लिए गए थे, तो वो वापस उसको बैलेंस करने का टाइम मिल जाता है। तो क्रॉप रोटेशन से हमें क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स वापस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के अंदर हम डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे मैन्योर बेसिकली कहाँ पे होते हैं, फील्ड में ग्रो होते हैं। फर्टिलाइजर्स बेसिकली फैक्ट्रीज में ग्रो होते हैं। मैन्योर क्या होता है, ह्यूमस से रिच होते हैं, फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं कराते। फर्टिलाइजर्स स्पेशल रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, मैन्योर नहीं होते। What is animal husbandry? Name any two practices under it. तो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करते हैं कि जो क्रॉप है के साथ साथ हम एनिमल्स का प्रोटेक्शन भी स्टार्ट करते हैं, कि क्रॉप के साथ साथ हम एनिमल कल्चर भी स्टार्ट करते हैं, उनकी फीडिंग के लिए हम स्टार्ट करते हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से हम उसको एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बर्ड्स और एनिमल्स का प्रोटेक्शन की भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट से हम लाइफ स्टॉक को हम ग्रो करवाते हैं। नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिवन एग्जांपल्स। तो इसके अंदर आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बेसिकली जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होती है इन अ गिवन टेम्परेचर, दे आर नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्योर सब्सटेंस की ओनली वन टाइप के सब्सटेंस इसमें मिक्सचर होते हैं। कोलाइडल लुक लाइक एज अ होमोजीनस, बस बेसिकली क्या होते हैं, हिट्रोजीनस होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, व्हाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड। क्यों हम उनको यूज में ले सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे वैरायटी को, ठीक है, एनरिच करेंगे सॉइल की क्वालिटी को, ठीक है, और प्रोवाइड करेंगे कि वेरियस जो जितने भी हमारे जो न्यूट्रिएंट है वो सॉइल को मिल गए हैं या नहीं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। तो बेसिकली इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन से हम बेटर यील्ड गेन कर सकते हैं, और उसके साथ ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं पेस्ट से, डिजीज से। ओके, नाउ डिस्क्राइब एनी 5 प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग में आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं, रेगुलर वैक्सीनेशन ले सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ ही आप डिजीज प्रिवेंशन करवा सकते हैं। तो कई सारे इसके अंदर हम कैटल फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ दीज आर सम क्वेश्चन जो हमने अभी क्विक रिवीजन किया चैप्टर नंबर 2 एंड 12 का। ओके, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।